بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں اور ابھی وہ کراچی میں اپنے اجتماع کر رہے ہیں۔ اسی دوران کافی لوگ ان کا ایک پراپر کویشچن آنسر سیکشن ہوتا ہے جس میں بہت سے لوگ ان سے اپنے سوالات پوچھتے ہیں۔ اسی طرح اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی ٹی وی ایکٹریس یشما گل، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے اپنا سوال پوچھا کہ وہ پہلے ایتھیسٹ ہونے جا رہی تھی، کافی حد تک ایتھیسٹ ہو چکی تھی، پھر ڈاکٹر صاحب کے لیکچرز وغیرہ سن کے ویڈیوز دیکھ کر وہ دوبارہ اسلام کی طرف آئیں، تو انہوں نے اس ڈاکٹر صاحب کا اس پہ شکریہ بھی ادا کیا۔ اور انہوں نے جو ایک بہت کامن کویشچن کیا جو کہ ہر عام بندہ اس کویشچن کو ذہن میں رکھتا ہے اور اس سے دھوکہ کھاتا ہے، وہ یہ کہ اگر قسمت میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو جو ہم کرتے ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہیں یا کون؟ کیونکہ اگر سب کچھ پہلے ہی لکھا ہوا ہے اور جو لکھا ہوا ہے ہم صرف وہی کر رہے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون؟ اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑے بہترین انداز میں سمجھایا۔ تو آئے اس ویڈیو ہم دیکھتے ہیں، اس میں وہ کمپلیٹ بتاتے ہیں کہ اصل یہ جو سینیریو ہے تقدیر کا مسئلہ ہے یہ کیا ہے۔ یہاں بہن آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر زائق. وعلیکم السلام۔ آپ کا نام اور آپ کا پیشہ؟ My name is Yashma Asad Gill and I am an actress. آپ کا نام کیا ہے؟ Yashma Asad Gill. یشما سرگل۔ Yashma Asad Gill. جی ہاں۔ Okay, I know the time is limited, but I really want to address your contribution in my journey. There was a time when I had fallen into the trap of atheism back in the days when I was doing my bachelor's, but alhamdulillah, it was your videos and your lectures that brought me back to my religion and brought my spirituality back to me and my faith back to me. So alhamdulillah for that, and thank you for coming to my country and especially my city. You've been a mentor and you are my, I'm literally shaking right now, I'm so sorry. Okay, so the question is, pardon me if I say anything wrong because my knowledge is limited, but at the time when I was doing my research and I came across your lectures, there was everything else that I could understand, but one question still remains, which is that this concept of predestination, and then there is this one concept of us human beings and Jannat having free will, right? تو اگر سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، اگر سب کچھ پری ڈیسٹنڈ ہے، تو جو کانسیپٹ ہے کہ اگر ایک چور کہیں پہ چوری کرتا ہے تو وہ تو پہلے سے نہیں لکھ دیا گیا تھا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے اس میں فری ول کے حساب سے؟ بہن نے ایک اہم سوال پوچھا ہے اور وہ کہتی ہے کہ پہلے وہ ایکٹریس تھی اور وہ ایتھیزم کے جال میں پھنس گئی تھی، اور میرے کیسٹ سننے کے بعد الحمدللہ وہ واپس دین کی طرف رجوع کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی۔ ان کا مین سوال ہے کہ قدر کے بارے میں۔ میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایک فلم انڈسٹری سے واپس صحیح راستے پہ آئے۔ بہت مشکل ہے، اگر میڈیا کے جال میں پھنس جاتے تو نکلنا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کافی لوگ کو ہدایت دے رہا ہے، آپ کو بھی اللہ نے ہدایت دی۔ جہاں تک یہ سوال ہے، ان کا سوال ہے قدر کے بارے میں، اباؤٹ ڈیسٹینی، فری ول، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے تقدیر میں لکھا کہ میں شراب پیوں گا اور میں شراب پیتا ہوں تو کون ذمہ دار؟ اللہ۔ یہ سوال بہت کامن ہے، لیکن اکثر مسلمان گھبراتے پوچھنے کے لیے، کیا کوئی فتویٰ نہ دے دے مجھے، میں کافر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں انسانوں کو انکریج کرتے سوال جواب کے لیے، اس لیے قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے 333 بار 323 ٹائمز 323 بار کہا گیا ہے کل، کالو، ان لوگ نے کہا، اور 323 بار اللہ کہتے کل، ان سے کہو۔ یعنی قرآن مجید کی ایک کوشچن آنسر بک ہے، 323 ٹائمز پوچھا گیا کہ یہ کیا سوال ہے، اللہ بولتا ہے کل، کہو کل۔ ان نے پوچھا اللہ کون ہے، قل واللہ احد۔ تو یہ کل جو ہے سوال کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن یہ سوال بہت کامن ہے کہ ہم تقدیر میں مانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر تقدیر میں لکھا کہ میں مرڈر کروں گا، میں کس کا قتل کروں گا اور میں قتل کرتا ہوں، تو کون ذمہ دار؟ اللہ۔ نعوذ باللہ۔ اگر
लिखा है मेरे तकदीर में कि मैं शराब पीऊंगा और मैं शराब पीता हूं, कौन जिम्मेदार? अल्लाह। नौज़ बिल्लाह। इसका जवाब ये है कि हमें समझना चाहिए तकदीर की क्या मानी है। और ये सवाल जब मैं दावती मैदान में तकरीबन 35 साल पहले शुरू किया तो ये सवाल मुझे भी बहुत परेशान कर, किसने पूछा नहीं मुझे, अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद है, जवाब मिलने के बाद ही लोग पूछते हैं। तो पहले चंद साल काफी तहकीक की लेकिन जवाब कोई किताब में मिली नहीं। जवाब मिला, फिर मैंने उलमा से पूछा सही है, तो उन्होंने बोले माशाल्लाह अच्छा जवाब है, अब मैं अभी पेश करूंगा आपके सामने। मैं मिसाल देता हूं कि अगर एक टीचर क्लासरूम में 100 बच्चे को पढ़ा रही है, 1 साल पढ़ाने के बाद इम्तिहान के पहले टीचर बोलती है ये बच्चा एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा, ये बच्चा सेकंड क्लास आएगा, ये बच्चा फेल होगा। माफ करना, आपको मिसाल बोल रहा हूं, खाली मिसाल है आपके लिए। और एग्जामिनेशन के बाद ये सही निकलता है, ये बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है, ये बच्चा सेकंड क्लास, ये बच्चा फेल होता है। मेरा सवाल है कि जो बच्चा फेल हुआ वो बोल सकता है कि टीचर ने प्रिडिक्ट की, क्योंकि टीचर ने प्रिडिक्ट की क्या मैं फेल होऊंगा इसलिए मैं फेल हो गया। क्या वो बोल सकता है ऐसा? हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? नहीं। टीचर देखती थी कि ये बच्चा स्टूडियस है, बराबर होमवर्क करता है, ज़हीन है, ये बच्चा एवरेज है, ये बच्चा हॉकी खेलता था, क्लास में भी नहीं आता था, पिक्चर देखता था। तो टीचर ने देख के प्रिडिक्ट की, और टीचर अक्सर सही होती है लेकिन इंसान है, गलती भी हो सकती। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक इंसान नहीं है, अल्लाह के पास इल्मे गैब है। अल्लाह को पहले ही पता है आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स आता है चौराहे पे, वो 4 में से एक सड़क को चुन सकता है, नंबर 1 सड़क, नंबर 2 सड़क, नंबर 3, नंबर 4। वो चुनता है नंबर 2 सड़क। चॉइस किसकी? चॉइस किसकी? इंसान की। हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इल्मे गैब है कि 5 तारीख को अक्टूबर के रात को 1 बजे, 1:15 बजे ये चौराहे पे आएगा, उसके पास 4 चॉइस थे, सड़क नंबर 1, सड़क नंबर 2, सड़क नंबर 3, सड़क नंबर 4। अल्लाह ताला जानते कि ये सड़क नंबर 2 चुनेगा, तो अल्लाह ताला लिख देते तकदीर में पहले ही कि ये इंसान 5 अक्टूबर की रात को 1 बजे, 1:15 बजे सड़क नंबर 2 पे चुनेगा। तो सड़क नंबर 2 किसने चुना? अल्लाह ने या क्या इंसान ने? अल्लाह ने चुना या इंसान ने चुना? इंसान ने चुना। तो कौन जिम्मेदार, अल्लाह या इंसान? अल्लाह या इंसान? इंसान। वो आगे जाता है और 3 सड़क आते हैं, सड़क ए, सड़क बी, सड़क सी। वो चुनता है सड़क ए, अल्लाह ताला जानता है कि वो सड़क ए चुनेगा, लिख देता है। कौन जिम्मेदार? इंसान। अल्लाह जानते हैं कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद वो इंसान ईमानदारी से कमा सकता है या चीटिंग करके कमा सकता है। वो चीटिंग करके कमाता है, अल्लाह ताला लिख देते कि ग्रेजुएशन के बाद ये इंसान को ऑप्शन नंबर था ईमानदारी से कमाए, चीटिंग करके कमाए। वो चीटिंग करके कमाएगा, एडवांस में लिखते। तो इससे हमें जाहिर होता है कि अल्लाह चुन रहा है कौन? इंसान। लेकिन अल्लाह ताला के पास इल्मे गैब है, तो अल्लाह ताला इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो इंसान ये गलत काम करेंगे। ये नहीं कि अल्लाह लिखते हैं और वो इंसान गलत काम करता है, क्योंकि वो इंसान गलत काम करने वाला है, अल्लाह जानते हैं, अल्लाह एडवांस में लिखते। तो कौन जिम्मेदार? इंसान। तो अल्लाह के पास इल्मे गैब है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी गलती नहीं करते। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया कि आप चोरी करके जिंदगी बसर कर सकते या ईमानदारी से। आप ईमानदारी से करते, अल्लाह ताला लिख देते क्या ये इंसान ईमानदारी से जिंदगी बसर करेगा। तो कौन जिम्मेदार? इंसान। एक हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है। सही बात है। मिसाल के तौर पे आप जाते हैं एग्जामिनेशन में, आपको पेपर आपका बहुत खराब जाता है, आप जानते हैं मैं फेल होने वाली हूं, आप घर पे आके दुआ करते
या अल्लाह मुझे पास कर। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि आप एग्जामिनेशन में जाने वाले ये तारीख को आप फेल होंगे। अल्लाह को ये भी पता है कि आप घर पे आके दुआ करेंगे, हाँ कि नहीं? अल्लाह को ये भी पता है कि अल्लाह दुआ कबूल करेंगे कि नहीं। अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। तो तकदीर में लिखा है ये लड़की एग्जामिनेशन में जाती है, फेल होने वाली थी, घर पे आके दुआ करती है, अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेता है, उसे पास कर लेता है। तो हमें पता नहीं कि क्या होगा, तो दुआ करना अच्छी बात है। इसीलिए अल्लामा इकबाल फरमाते खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। सुभान अल्लाह। तो तकदीर का मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको इख्तियार दिया है। 100% नहीं, 95%, 90। मैं चाहता हूं मैं दुनिया को तबाह कर दूं, अल्लाह ताला नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह आपकी चॉइस आपके ऊपर छोड़ा है। आपको हिदायत दी कुरान में और हदीस में, आप फॉलो करो नहीं करो आपके ऊपर है, आपके ऊपर फ्री विल है। लेकिन अगर आप कोई गलती करते आप जिम्मेदार, आप कोई अच्छाई करते आप जिम्मेदार। तो इसीलिए तकदीर के बारे में अल्लाह को इल्म गैब है। तो जो भी गलत काम करते हैं आप करते हैं, अल्लाह ताला आपसे नहीं करवाता। तो ये अगर आप समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह आप कुरान मजीद की जो तालीमात पे अमल करेंगे और इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे। होप द आंसर द। यहाँ पे आपने देखा होगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़े अच्छे अंदाज में उसको एक्सप्लेन किया कि तकदीर का मसला असल है क्या। ये मसला यही है कि असल में अल्लाह को क्योंकि गैब का इल्म है और अल्लाह को सब कुछ पता है कि अगले हिस्से में इंसान ने क्या करना है, और सिर्फ वही चीज़ जो कि अल्लाह को पहले पता है अल्लाह ने वो चीज़ लिख ली हुई है। हमारी फ्री विल है, हम जो करते हैं अपनी मर्ज़ी से करते हैं, और इसको डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब को एक गलती हुई, वो ये समझे क्योंकि वो इनको जानते नहीं है, उनको ये पता लगा शायद ये शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़ चुकी हैं और बिल्कुल उससे किनारा कश हो गई हैं। लेकिन असल में यशमा गिल अभी भी एक्ट्रेस हैं। जो अच्छी बात ये है कि वो मुल्हिद होने को जा रही थी, लेकिन वो वहाँ से वापस आई और मुसलमान ही हैं। और लेकिन अभी भी उनकी वो एक्ट्रेस हैं, टीवी इंडस्ट्री में काम करती हैं, जिसके डॉक्टर जाकिर ने शायद समझा कि वो उन्होंने एक्टिंग ही छोड़ दी है। और उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री के बारे में इजहार किया कि ये कोई अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, इसमें एक बार जाके आना बहुत मुश्किल है और इसमें आपके लिए गुनाह के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा वेल एक्सप्लेन किया, चीज़ों को समझाया। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे ही हमें हिदायत दें और वो अमाल करने की तौफीक नसीब फरमाएं जिससे हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो। अस्सलाम वालेकुम।